question reads, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. This is a very key word, angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects B as well as angle C, angle B as well as angle D. See here, ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle where diagonal AC makes an angle 1, 2 and 3, 4 with vertex A and C. This is what I have written in the figure A1. ABCD is a square where AC is a diagonal making an angle 1 and 2 with the point A and C, and angle 3 and 4 with point A and angle 3 and 4 with point C in figure 1. Actually in the exam you need not draw two figures, but for the sake of understanding I have drawn two figures. एग्जाम में आप एक ही फिगर से काम चला सकते हो. अब मेरा पहला पॉइंट क्या, देखो पहला पॉइंट यहीं पर दिया है कि एंगल ए बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज सी, यानी मुझे पहला हिंट मुझे दिया है कि ये दोनों बाइसेक्ट होते हैं. बाइसेक्ट होते हैं यानी क्या, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है. तो मैं वही ट्रायंगल लूँगा जहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 होगा और जहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 होगा. तो सिंपल है. कौन सा ट्रायंगल लूँगा बच्चों, अभी मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा ट्रायंगल ABC लेना पड़ेगा और ट्रायंगल CDA, जहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 है. तो उसी दो ट्रायंगल्स को मैं ले रहा हूँ. So what I have done is, in triangle ABC, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ABC, दूसरा ले रहा हूँ CDA and triangle CDA. I will use the hint that is given to me. The first hint given to me is angle 1 equal to angle 2. Bisect कर रहा है मतलब ये एंगल इसके बराबर है. तो I'll write my first equation, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन और ये है गिवन. ये कहाँ से आया, बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन. सेकेंड हिंट मैं यूज़ करूंगा जो 3 इक्वल टू 4 जो वो कह रहा है उसी को मैं यूज़ करूंगा. 1 2 के बराबर है, 4 3 के बराबर है. सो आई राइट हियर 4 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3. सो जो मुझे दिया है उसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग वॉट एवर इज गिवन टू मी. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यूज़ किया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 यूज़ किया, और इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड कॉमन है. दिस टू एंगल्स आर इक्वल एंड दिस साइड इज कॉमन. सो थर्ड पॉइंट इज साइड AC इज इक्वल टू साइड AC. दिस इज माई थर्ड पॉइंट बिकॉज कॉमन साइड. So what I can say is, what I can conclude from equation 1, 2 and 3 is triangle ABC is congruent to triangle CDA. Triangle ABC is congruent to triangle CDA. Now sir, what did you prove? You are supposed to prove that ABCD is a square. And what are you proving? You are proving that these two triangles are congruent. Wait gentlemen, I have not come to the conclusion now. So if that is the case, then I can say that this side is equal to ABC and this side equal to this side. That means what? See, already ABCD is a rectangle. See, in order to prove that ABCD is a rectangle, already since it's a rectangle, opposite sides are equal. If I can prove that adjacent sides are equal, then it becomes a square. Already rectangle होने की वजह से सारे एंगल 90 डिग्री है, आमने सामने वाले साइड इक्वल है. अगर अगल बगल वाले साइड को इक्वल मैंने बता दिया तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा. तो सिर्फ मुझे काम क्या करना है कि अगल बगल वाले साइड को इक्वल बताना है. यानी मुझे क्या बताना है कि साइड AD के बराबर है. साइड AD के बराबर है, फर्स्ट पॉइंट. और साइड BC
साइड CD के बराबर है, BC इक्वल टू CD। ये कहाँ से आया, इसको मैं फोर्थ पॉइंट कहूँगा, और ये आया CPCTC से। It has come by CPCTC. Already ABCD is a square where opposite sides are equal. Now what I have proved is not only opposite side but also adjacent sides are equal. So ABCD is a rectangle where all sides are equal. Remember, मैं repeat कर रहा हूँ, ABCD is a rectangle where all sides have become equal and all angles are 90 degree, and that is sufficient to say that ABCD is a square. So what I can say is, since ABCD is rectangle, since ABCD is rectangle, since ABCD is rectangle, what I can say is angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree. Point number 5. Also, if you say it's a rectangle, AB equal to CD and AD equal to BC, AB equal to CD and AB equal to CD and AD equal to CD, AB equal to CD and AD equal to BC, AD equal to BC. See, equation 4 says equation 4 says this adjacent sides are equal. Equation 4 says adjacent sides are equal, and equation 5 says all angles are equal and opposite sides are equal. That means if opposite sides are equal and adjacent sides are also equal, then all sides are equal. So ABCD is a rectangle where all sides are equal and all angles are 90, so it is a square. So what I can conclude is from equation 4, 5 and 6, 4, 5 and 6, ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle where adjacent sides are equal, or all sides are equal. Adjacent sides are equal. Now if it is a rectangle, I need not separately say that all angles should be 90, and therefore I can conclude, implies ABCD is a square. ABCD is a square. I repeat what I have told you so far. मैंने आपको फिर से क्या बताया, रिपीट करता हूँ. देखिए ABCD ऑलरेडी रेक्टेंगल है, तो ऑलरेडी रेक्टेंगल है तो सामने वाले साइड्स इक्वल है, सारे एंगल 90 है, ऑलरेडी हमको पता है. मगर ये कैसा रेक्टेंगल है, ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जहाँ पर डायगोनल क्या कर रहा है, इन दो एंगल्स को इक्वल डिवाइड कर रहा है. तो अगर ऐसी बात है तो ये दो ट्रायंगल्स को मैं ले लेता हूँ, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा. तो यहाँ ये क्या होगा कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये साइड क्या होगा, कॉमन टू बोथ है. तो दो एंगल्स और बीच वाला साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. और एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, यानी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट हैज़ बिकम अ स्क्वायर. अब आप चाहो तो यहाँ पर BD डायगोनल डाल सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, मगर अगर BD डायगोनल डालूंगा तो मुझे डर इस बात का है कि यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, यू शुड नॉट गेट हॉरिबली और टेरिबली कन्फ्यूज्ड. अब कौन सा ट्रायंगल क्यों लेना है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है. तो देखिए अभी डायगोनल BD मेक्स एंगल 5 and 6 विथ B एंड 7 and 8 विथ D. अब मुझे क्या बताना है कि 5 इक्वल टू 6 और 7 इक्वल टू 8 बताना है, यानी कौन सा, डायगोनल BD मेक्स BC मेक्स इक्वल एंगल विथ D. दैट मीन्स ये B और C जो है 5, 6 के बराबर होगा और 7, 8 के बराबर होगा, ये मुझे बताना है. सिंपल सी बात है बच्चों, देखिए मैं कैसे बताता हूँ. इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BAD आपने ले लिया, फिर हम लेंगे
सी डी बी, बी ए डी और सी डी बी, या फिर ए बी डी ले लीजिए, सी डी बी। आप इन ट्रायंगल ए बी डी और सी डी बी ले लीजिए। अब आप थोड़ा ध्यान देना, ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इक्वल होगा। वैसे तो आमतौर पे ट्रायंगल्स के स्क्वायर के अंदर सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मगर मैंने स्पेसिफिकली क्या किया है, सी डी इक्वल टू ए डी मैं लिखूँगा। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन 6 तक तो यहाँ हो चुका है, इसलिए 7 लिखूँगा। उसी तरह से मैं इसको भी बताऊँगा कि ये साइड इसके बराबर है। कौन सा हो गया वो, बी सी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू ए बी। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 8। और इन दोनों का रीज़न है ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो these two sides are equal, this is common to both, so BD is equal to BD, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 8, कॉमन साइड। तो बच्चों ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CDB, बच्चों अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी 5 6 के बराबर होगा, 7 8 के बराबर होगा। इम्प्लाइज एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। और ये कहाँ से आया, CPCTC, एंड देयरफॉर BD bisects एंगल B as well as एंगल D। तो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव किया, तो CPCTC के अंतर्गत ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। द प्रॉब्लम एंड्स हियर। नेक्स्ट 8th प्रॉब्लम के बाद 10th प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर 9th प्रॉब्लम कहाँ चला गया, 9th प्रॉब्लम कहीं गया नहीं है। अगर आप 1-2 दिन पहले वाला वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने उसको अपलोड किया है, आप उसको रेफ़र कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने उसको एक वीडियो में उसको कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड्स, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AP and CQ are perpendiculars from the vertices A and C on diagonals BD। डायगोनल BC के ऊपर क्या है, BD के ऊपर, ये दो अगर परपेंडिकुलर है तो आपको बताना है कि APB is congruent to CQD और AP is equal to CQ। देखिए मुझे जो प्रूव करना है उसी को मैं ले लेता हूँ और प्रूव कर देता हूँ। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, इसी ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप देखिए आप कि ये ब्लू कलर का लाइन जो मैंने ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये ब्लू कलर का लाइन मैंने जानबूझ के बताया है ये बताने के लिए कि APB ट्रायंगल के अंदर AB साइड आता है और CQD ट्रायंगल के अंदर ये CQ साइड आता है, और ये दोनों साइड अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम होने की वजह से इक्वल हो जाएगा। सो AB इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट है AB इक्वल टू CD, फर्स्ट पॉइंट है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ABCD का अपोजिट साइड होने की वजह से दोनों इक्वल हो गए। बाद में आप देखिए कि ABCD को पैरेलल है बच्चों, ABCD को पैरेलल है, और एक अल्टरनेट, एक ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये येलो वाला जो शेडिंग मैंने दिया है वो ये बताने के लिए दिया है कि अल्टरनेट एंगल C इक्वल हो रहा है। तो आप देख लो कि ये वाला एंगल CDQ और ये वाला एंगल ABP दोनों इक्वल होगा, बिकॉज
अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। तो ऐसी बात है, तो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी बिकॉज सेकेंड इक्वेशन मेरा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड प्रूफ आप देख रहे हो, रेड मार्किंग मैंने किया है कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, बिकॉज उन्होंने कहा है कि दे आर परपेंडिकुलर्स, ये गिवन है। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मेरा थर्ड इक्वेशन है, बिकॉज गिवन। तो व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज, तो ये ब्लू लाइन के बराबर है, येलो वाला एंगल के बराबर है, ये पिंक एंगल पिंक के बराबर है। यानी आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडिंग साइड, इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडिंग साइड इक्वल हो गए। यानी टू एंगल्स एंड वन नॉन इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड वन नॉन इंक्लूडिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। सो द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल side. So what I can say is, from equation 1, 2, 3, triangle APB is congruent to triangle CQD। फोर्थ इक्वेशन है ये बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और बच्चों वैसी बात है तो ऑटोमेटिकली सी क्यू विल बी इक्वल टू ए पी, या ए पी विल बी इक्वल टू सी क्यू बाय व्हाट इज इट, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्राइटेरिया। तो सीधी सी बात है, इस ट्रायंगल के अंदर उन्होंने खुद कहा है कि ये अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री होगा, और ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो कितना सिंपल है बच्चों। 7वां क्वेश्चन के लिए अलग सा वीडियो बनाया है, आप उसको रेफर कर सकते हो। 7वां क्वेश्चन, 7वां नहीं 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन अलग सा वीडियो बनाया है, आप उसको रेफर करके, वो भी आसान क्वेश्चन है मगर थोड़ा बड़ा होने की वजह से अलग सा एक वीडियो मैंने बनाया उसके लिए।